Hi and welcome back. Today I'm going to talk about a very important topic, which is studying abroad for absolutely no cost. Is it really true that you can study abroad for free? Partially. If you type study abroad for free, you would find lots of videos on internet, lots of URLs on internet, lots of websites. There might be many agents or people in India who might be telling you pay us and then we would send you to a university where the cost of tuition is nothing. For example, बहुत सारे लोग कहते हैं कि let's go to Germany because German education is absolutely free. But that's not really completely true. What happens is if you compare IIM Ahmedabad with Delhi University, right, there is a contrast, a huge contrast when it comes to tuition fees. IIM Ahmedabad 25 lakh, Delhi University 25,000. So that 25,000 is technically free because 25,000 तो आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं. Now the same happens abroad because when you go abroad, and if you look at the top business schools in Germany, they would be costing around 30 lakhs, 40 lakhs. But if you look at the public universities in Germany, they would be costing you 200 euros or 400 euros. Again, 25,000. So the point is, if you're going to a public university, a Sarkari school for that matter, obviously the tuition is going to be low. But you can't be going to a business school to do an MBA or a master's in business analytics for absolutely no cost. That's not possible. Anyway, let's not talk about Germany. That's for a different day. I have already made a video and that's available on Advisory YouTube channel. You can just look for it. But today we are going to talk about how you can actually save a lot of money at a business school when you're going to study in France. It's not completely free, but you can save a lot of money because you'll be studying free of cost for at least 1 year. How's that possible? Well, there is a concept of M1 and M2 in Germany. Again, what is M1 and M2? There's a video, separate video, I've already made it. You can check it out here. But what is M1 and M2? M1 is first year of masters, M2 is second year of masters. So if you're eligible for M2 and you're only going for 1 year, it's not going to be free at all. But if you're going for M1, which is the first year, and the cost of tuition is quite less. बिकॉज इंडिया में क्या होता है 12 लाख पहले साल की फीस, 12 लाख दूसरे साल की फीस, तो आपकी फीस हो जाती है 24 लाख. फ्रांस में ऐसा नहीं है. आपके अगर दूसरे साल की फीस 12 है तो शायद पहले की 4 या 5 होगी, बहुत ज़्यादा 6 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी बहुत सारे केसेस में. तो मान लेते हैं कि आपको मार्केटिंग प्रोग्राम करना है या सप्लाई चेन करना है या इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स करना है. बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं आपको बताऊंगा कहाँ करना है, बट जस्ट लेट्स इमेजिन आपको सप्लाई चेन करना है. एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी सप्लाई चेन, if you go to M2 directly, which is a specialization here, you have to pay the fees. But if you're going for year 1, आपको फीस पहली बात आधी देनी पड़ी, which is 5-6 लाख रुपए, right? आपका 1 साल का मास्टर्स पूरा हो गया with internship. Second year में you have this opportunity that you can go for something called alternance. What is alternance? Alternance program is a program which is jointly managed by an employer, by a company, by a corporate and the university. That means half of the time आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे और half of the time आप कंपनी में काम करेंगे. एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं. लेट्स कंसिडर एयर फ्रांस. आप एयर फ्रांस के ऑल्टरनेंस कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं. ऑल्टरनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिमिलर टू अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया. ऑल्टरनेंस कॉन्ट्रैक्ट में एयर फ्रांस आपको बोलेगा कि भैया आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं, आप 3 दिन वहाँ रहिए, 2 दिन हमारे पास रहिए, या फिर आप 2 दिन वहाँ रहिए, 3 दिन हमारे पास रहिए. इससे क्या होगा? आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें एम्प्लॉय मिलेगा, कॉलेज को स्टूडेंट मिलेगा, बट कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो आप नहीं देंगे, वो हम देंगे, राइट? प्लस हम आपको स्टाइपेंड देंगे. सो आप क्या सिर्फ एजुकेशन फ्री नहीं हो गया, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मिला, आपको जॉब तो मिला ही मिला, और आपको स्टाइपेंड मिल रहा है. एंड सबसे बड़ी बात, you would have this opportunity to convert this alternance into a full-time job once you completely graduate, right? So मुझे नहीं मालूम आप इसे फ्री बोलोगे या पर्क बोलोगे या अपॉर्चुनिटी बोलोगे, बट अगेन आई वांटेड टू शेयर दिस अपॉर्चुनिटी विद अ लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है. एंड आई एम श्योर आज से पहले किसी ने शायद आपको ना बताया हो, बट सिंस आई गॉट टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, आई फेल्ट दैट इज कंप्लीटली वर्थ शेयरिंग विद यू. सो अब ये करते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको M1 करना होगा. सो टेक्निकल प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली सेम. अप्लाई करिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, जस्ट गो एंड डू M1. कहीं भी कर दो M1, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छे स्कूल में करो. सेकेंड थिंग, जब आप ऑल्टरनेंस करने जाओगे तो आप यूनिवर्सिटी से पता करो कि भैया आपके पास ऑल्टरनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है. वो बोलेंगे नहीं होता, मत करो, दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो जहाँ पे ऑल्टरनेंस है. फॉर एग्जाम्पल, माई अल्मा माटर, कैच बिजनेस स्कूल हैज़ एन ऑल्टरनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई चेन. नाउ
वंस यू कंप्लीट M1 एट एनी स्कूल, वेदर इट्स स्केमा और नियोमा और कैज और किसी भी स्कूल में, आप M2 के लिए ऑल्टरनेंस में हमारे यहाँ बात करो, कैज में बात करो। आप बोलो कि मैडम आई वांट टू अप्लाई फॉर कैज का ऑल्टरनेंस कॉन्ट्रैक्ट। दे वुड आस्क ओनली फॉर वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रांस में आपको 1 साल हो गया कि नहीं, बिकॉज आपको 1 साल फ्रांस में रहना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर ऑल्टरनेंस। वो तो आपको ऑलरेडी हो गया बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड M1। दूसरी चीज़, भैया क्या आपको फ्रेंच आती है? हाँ जी मैडम आती है, A1 A2। A1 A2 से काम नहीं चलेगा, आपको B1 आनी चाहिए, क्योंकि जो ऑल्टरनेंस प्रोग्राम होता है वो कंप्लीटली फ्रेंच में होता है, राइट? आपको लग रहा है यार फिर क्या फ़ायदा हुआ इस वीडियो को देखने का, ये तो पहले ही बता देना चाहिए था। बट अगेन, आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको फ्री में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़िए। आपको फ्री में पढ़ना है, आप ऑलमोस्ट जर्मनी जाइए, पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़िए। बट वहाँ भी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्री में नहीं पढ़ाएंगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट लेट्स नॉट गेट डाइवर्ज आउट ऑफ द टॉपिक, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल्टरनेंस। पहली चीज़, आपको फ्रेंच आनी चाहिए, B1। दूसरी चीज़, यू शुड बी लिविंग इन फ्रांस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल्टरनेंस। उसके बाद आप कंपनी से बात करिए या कॉलेज से बात करिए। 2 प्रोसेस हैं। पहला, आप कॉलेज से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जो ऑल्टरनेंस में मुझे हायर करने के लिए रेडी हैं। दूसरा, आप कंपनी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैं जाके पढ़ सकता हूँ। इट कैन बी डन ईदर वे, राइट? सो जब ये दोनों में से आपने एक भी प्रोसेस किया, आपका ऑल्टरनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका एक रिटन एप्लीकेशन होगा, छोटा सा इंटरव्यू होगा कंपनी में भी और कॉलेज में भी। अगर वो हो गया, माशाल्लाह, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगले 1 साल के लिए, बिकॉज यू डोंट हैव टू पे द ट्यूशन। आपको लैंग्वेज आती है, जिसका मतलब है कि आपकी जॉब ऑलमोस्ट गारंटी तो नहीं बट ऑलमोस्ट गारंटीड ज़रूर हो जाएगी 1 साल बाद, और आपका ट्यूशन ज़ीरो है। तो अगर आपको लगता है कि ऑल्टरनेंस के लिए आप एलिजिबल हो, तो प्लीज़ go ahead and apply for it. It's a wonderful opportunity for you. I really want you to save a lot of money when you're going abroad, because especially in this situation, I think pandemic has been tough for everyone, financially as well, not just mentally and health wise. So please save a lot of money if you can. Learn French in India. That's very strongly recommended. आप ऑल्टरनेंस में जाओ या इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम में जाओ, प्लीज़ लैंग्वेज सीख के जाओ। आप US कभी भी बिना इंग्लिश के नहीं जाएंगे, आप UK कभी भी बिना इंग्लिश के नहीं जाएंगे। सो आप फ्रांस क्यों बिना फ्रेंच के जाएंगे? प्लीज़ डोंट डू दैट, राइट? सो लर्न फ्रेंच, कहीं भी सीखो, एडवाइजरी पे सीखो, अपने घर के मोहल्ले में सीखो, भैया भाभी से सीखो, आती है उन्हें तो। एलियंस फ्रांसे में सीखो, एलियंस फ्रांसे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रेंच सीखने के लिए, आप वहाँ सीखो, किसी भी कोचिंग से सीखो, बट द पॉइंट इज आप सीखो, because that is going to help you a lot. All right, so this is all about alternance contract. If you have any questions, please write in comment section. I will personally answer, or I would ask my team to answer the questions for you. And और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सीधे लिख सकते हैं कैच बिजनेस स्कूल गूगल पे ऑल्टरनेंस प्रोग्राम, या फिर लिख सकते हो कैच बिजनेस स्कूल सप्लाई चेन प्रोग्राम। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सोरबॉन यूनिवर्सिटी कराती है, स्केमा है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बिजनेस स्कूल्स हैं जो ये प्रोग्राम्स कराते हैं। सो प्लीज़ गो हैड एंड रीड मोर अबाउट ऑल्टरनेंस, बट शर्त ये है कि आपको फ्रेंच में B1 होना चाहिए और आपको फ्रांस में 1 साल रहना चाहिए, राइट? तो अगर आपने M1 के लिए जा रहे हो तो आप M2 के लिए एलिजिबल हो ऑल्टरनेंस में। अगर आप M1 के लिए एलिजिबल नहीं, आप डायरेक्टली M2 के लिए एलिजिबल हो, तो फिर आप ऑल्टरनेंस करोगे ही क्यों? यू डायरेक्टली गो फॉर अ जॉब, right? So I hope this was clear. If you have any questions, feel free to reach out to us, and take good care of yourself. These are very testing times. Take good care of yourself, good care of your family. Jai Hind.